ابو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، میں جو تفسیر قرآن کا ویڈیو وغیرہ بنا کے ڈالتا ہوں وہ میں نے ڈالا اپنے چینل پر، اس کے بعد اس کی لنک میں نے واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں شیئر کر دی۔ موضوع یہ تھا کہ جو جنگ احد میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین شہید ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مردہ کہنے سے منع کیا اور کہا کہ گمان بھی نہ کرو وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ تو سب جانتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے جب شیئر کیا تو یہ اہل حدیث جس کا نام عبد الکریم ہے، اس نے کمنٹ کیا مجھے ٹیگ کر کے واٹس ایپ گروپ میں، اور کہا کہ مردہ کہنے سے منع کیا ہے، مردہ ہونے سے نہیں۔ یعنی ذرا دیکھیے یہ کس پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کس پر اعتراض کر رہے ہیں یہ جاہل اہل حدیث۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ کہنے سے منع کیا، مردہ ہونے سے منع نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ چاہے کان سیدھا پکڑو یا کان ہاتھ گھما کر کان پکڑو، بات ایک ہی ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ مردہ ہی مانتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تو بھی کہیں گے بھائی وہ مردہ ہی ہے، تم دفنا کس کو رہے، مردہ کو ہی دفنا رہے ہو۔ جیسے باقی لوگوں کو دفناتے ہو جب مر جاتے ہیں تو ان کو بھی ویسے ہی دفنا رہے، تو یہ بھی مردہ ہی ہے۔ تو ان کے ذہنوں دلوں میں گمان میں سب یہی چیز رہتی ہے، یہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانتے ہیں نہ رسول اللہ کی مانتے ہیں۔ یہاں تک ان کے مولویوں نے لکھا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کچھ کہیں گے تو بھی وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، بتائیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اہل حدیث کہتے ہیں کہ مسائل میں موٹی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بتائیے۔ بہت ہی جو ہے ذلیل قسم کے لوگ ہیں یہ اہل حدیث، اسی لیے ہم کہتے ہیں یا تو یہ کافر ہے یا تو گمراہ ہے، یہ بہت ہی لچڑ لوگ ہیں۔ اب دیکھیے یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں گے کیا، صادق بھائی سے بات کر رہی، آپ آخر تک آڈیو سنیں، بیچ میں اور 2-3 ٹاپک اٹھایا اس نے، تو اس کا بھی صادق بھائی نے جواب دیا ہے، تو آپ آخر تک سنیں۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شہید ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تو ہم اسے یہی کہہ کے دفنائیں گے کہ یہ شہید ہے، لیکن نہیں، اہل حدیث کیا ہے گا، یہ مردہ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، انہیں مردہ نہ کہو۔ لیکن اہل حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی نہیں سنتا۔ قرآن کی آیتیں ہیں صاف صاف، اور قرآن کی آیت کا منکر کافر ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی نیچ لوگ ہیں، یہی کہنا پڑے گا ان کو، ان سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنی چلا رہے ہیں تو پھر ان کی کون سنے گا؟ اور ایک نمبر کے جاہل ہوتے ہیں یہ سالے۔ اب دیکھیے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اردو پڑھنی نہیں آتی ہے، اور باتیں دیکھیے کتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں یہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں یہ لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ آخر تک سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، ہاں جی، کون بات کر رہے ہیں جناب؟ جی کون بات کر رہے ہیں؟ عارف خان صاحب بات کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، عبد الکریم صاحب بات کر رہے ہیں۔ میں صادق علی بات کر رہا ہوں گجرات سورت سے۔ میں صادق علی انصاری بات کر رہا ہوں گجرات سورت سے۔ ہاں جو لیکن واٹس ایپ پہ آپ نے جو لکھا ہوا ہے عاطف خان لکھا ہوا ہے، عاطف خان۔ نہیں میں نے لکھا تو ایک ویڈیو ڈالی گئی تھی، کیا؟ ایک ویڈیو ڈالی گئی تھی حسینی لشکر گروپ میں، آپ نے اس ویڈیو کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ نے مردہ کہنے سے منع کیا ہے، مردہ ہونے سے نہیں۔ ہاں تو لکھا ہے، ہاں لکھا ہے، میں نے لکھا ہے۔ آپ کون سے مقصد سے تعلق ہیں؟ مکتب کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ قرآن حدیث ہے اور کون ہوتا ہے؟ مکتب کیا ہوتا ہے؟ مطلب جماعتیں ہیں، قرآن اور حدیث ہے، اللہ سنت والجماعت۔ سنت والجماعت۔ یہ جو آپ نے بتایا نا، ابھی آپ نے مبہم بتایا، ادھورا بتایا، اس کو پہچان کے لیے مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان سے مردہ مت کہو۔ وہ آگے بات کریں گے انشاءاللہ، وہ آگے بات کریں گے، اسی لیے تو میں نے فون کیا۔ مطلب میں آپ سے جان لوں کہ مطلب آپ بات کون کر رہے ہیں، ہاں اسی پہ بات کریں گے۔ آپ مطلب بات کون کر رہے ہیں، مطلب کون سے مقصد فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ حدیث
अहले हदीस, हाँ बस वही 2 लफ्जों में आप बता देते, लंबी बात है। हाँ जी बताइए, अब क्या कह रहे थे आप? अल्लाह ताला ने जो हम्म। कहा है मुर्दा मत कहो, होने हम्म। मुर्दा होने से इनकार थोड़ी कोई। मुर्दा मुर्दा कितने किस्म के होते हैं? हेलो। अजी मुर्दा, मेरी बात तो सुनो, जी जब बताइए। आदमी शहीद हो गया हम्म। है तो शहीद का दर्जा तो अल्लाह ताला ने कहा भी वो तो जन्नत में जाएगा, हम्म। कहना मतलब तो उसको दफनाया जाएगा ना, उसको मैंने मुर्दा उन्हें पूछा, दफना होगा सही ना। मुर्दा जो मुर्दा जो दफनाने होते हैं किसको है, सुन लीजिए दफनाना हजरत, उसको जो मुर्दा हो जाता है उसको कहो मत, बस दफना दो। मैं मैं कह रहा हूँ कि मुर्दा जो होते हैं कितने किस्म के मुर्दा होते हैं? है? मुर्दा कितने किस्म के होते हैं? जो इसमें जान नहीं रहा मुर्दा ही है, कोई भी हो ना। ऐसा तो नहीं है। कैसे नहीं है, आप अहले हदीस इसमें दावा जान करते हैं कुरान और हदीस, को मौत का मजा चकना है। सुने सुने सुने, आप अहले हदीस या कह रहे हैं कुरान और हदीस को फॉलो करने का दावा करते हैं, आपको आपको कुरान का इल्म भी नहीं है। बोलो क्या इल्म बताओ ना। जिसके सीने में ईमान है वो भी तो मुर्दा है, उसको भी दफन कर दिया जाएगा। अरे वो अलग चीज है। अलग नहीं भैया, बात मुर्दा क्यों है? आपने जो बात कही है, इल्म और उसके बाद ईमान रात जो में जो सोया हुआ जानकारी है, इंसान, सुन लीजिए पूरी बात सुनिए। जो रात में सोया हुआ इंसान वो भी मुर्दा ही अल्लाह ताला ने उसको फरमाया है, वो भी मुर्दा है, वो अलग चीजें हैं, उसको मगर भी जाए दफन कर दिया बात जाएगा। कौन सी हो रही है, यह बात उसकी हो रही है सामने है मौजूद। तो जब सामने मौजूद तो भाई मुर्दा जो सोया रहता है वो भी तुम जो सामने, जो शहीद सोया हो है वो गए, भी तो सामने अरे दिखेगा। जो पहली शहीद हो बात, गए, जिनकी जान निकल गई, जिनकी जान निकल गई, अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया है उसको आप मानते नहीं मानते हैं? आप अपने अक्ल से माने या कुरान को माने, वो बताइए। अभी आपने मानते कहा हैं। है कि कुरान और हदीस, अभी आपने कहा कुरान और हदीस को मानते हैं, तो हम अब कुरान और हदीस से बात करें ना, अपने अक्ल के मुताबिक बात ना करें। कुरान में 3 कैटेगरी के मुर्दा का जिक्र किया गया है ना? क्या जो सोया हुआ है वो भी मुर्दा है, और जिसके सीने में ईमान है वो भी मुर्दा है है ना? क्या, वो तो आप थोड़ी तौर पे आदमी अभी जान आ जाए तो ठीक, नहीं तो मुर्दा ही है, वो भी अलग चीज है, वो हाँ, अलग तो बात है। अभी आप आपने वो क्या क्यों नहीं कहा जानो, कि जो मर जाए तो उसको दफन कर दिया जाए, अरे तो जो मुर्दा तो 3 किस्म के लोग होते हैं, वो बताइए पहले। भाई जिस मौजू पे चल रही है कि आप वहाँ पे शहीद हो गए, तो शहीद हो गए वहाँ पे, वो बात करो ना। तो बात उसी तरह से, आप एक कुरान की आयत को ले रहे हैं, दूसरी कुरान की आयत को छोड़ रहे हैं, आप तो कुरान कौन को क्या है कहाँ छोटा अमल बताओ, कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं आप? कौन क्या है छोटा बताओ। कुरान में जिसके सीने में ईमान नहीं है उसको भी मुर्दा कहा गया कि नहीं कहा गया? अरे भैया वो भी मुर्दा जानवर है, जानवर तरह के क्या आदमी, वो भी जानवर भी कहा है। जानवर की बात नहीं है, जिसके अरे सीने में ईमान नहीं है वो भी मुर्दा है, और जो सोया हुआ है रात के समय वो भी मुर्दा है। अब वो बात तो फैसला अल्लाह करेगा। कौन का अल्लाह करे? ये तो कुरान में अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, आप करेगा क्या है? अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कुरान में। फैसला करेगा, क्या करें? वो तो अल्लाह फैसला करेगा ईमान है या नहीं है। अल्लाह ताला देखिए, अभी आपने कुरान में मतलब पढ़ा भी नहीं, अभी आप कह रहे कि अल्लाह ताला फैसला करे। अल्लाह ताला ने सारे फैसले तो कुरान में बयान कर दिए आप कैसे कहते हो भैया, मैं कैसे कह दूंगा कि आपके दिल में ईमान नहीं है, मैं क्यों कौन कौन कहने वाला हूँ। कुरान से। अभी आपने कुरान नहीं पढ़ा? बोलो कुरान से बताइए, कुरान से उसको बताएंगे ना कि आपके सीने में ईमान है या नहीं है, उसको कुरान से बताएंगे ना आप। अरे ये तो दिलों के राज तो अल्लाह जानता है, आप जानते हो या मैं जानता हूँ। अच्छा, वो जो जो जिसका जो मुर्दा गुमान ना करो, वो कौन सी आयत है, जरा पढ़ के बताइए तो। नहीं इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो सीधे जन्नत में जाएंगे, एकदम सीधे एकदम। क्यों, कुरान वैसे तो आता भी नहीं है, कुरान वैसे फॉलो भी करते हैं। अरे लगे बंदे जो मौलाना की रात दिन तकरीर सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं, तो आए नंबर है आप तो ऐसे निकले, आप जो तो मैं ऐसे कह रहा हूँ ना, मुस्तहिल निकले। जो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई मुर्दा मत को आप, अल्लाह ने कहा है, मगर मुर्दा होने से मना थोड़ी करा है भाई, इसको ऐसा दबना दो। होता, भाई मैं ये आपके दबना किस सामने भी जाता है, अच्छा मैं अच्छा ये बताइए दबना किस भी जाता है, जिंदा को या देखिए, मुर्दे को। आप मैं जवाब अगर आपके साहब, सामने होता ना, मैं आपके सामने होता तो आपका शागिर्द बन जाता माशाल्लाह। इतने कुरान और हदीस आप फॉलो करने वाले कहाँ थे आप? अल्लाह के बंदे, ये बताइए आप कि दबना है किसको जाता है, मुर्दे को या जिंदे को। बाद दफा जिंदों को भी दफना दिया जाता है, कैसे दिए मिल जाएगा बताओ। बहुत सारे लोग भाई को दो दफना भाई दिया हैं, जाता है। मेरी बात सुनो, दो भाई हैं और जंग में गए दो भाई, है ना, एक भाई हम्म। शहीद हो गया और एक भाई वापस आया, साथ में आया, वो सही है, अब दोनों में से किसको दफनाएंगे। आप कहना क्या चाहते हैं, उनका मतलब क्या है? दफनाएंगे तो ना आप उसी उनको को। मुर्दा कहेंगे? जो शहीद हो गया आप उनको मुर्दा कहेंगे आप? हम मगर मगर दफनाएंगे ना,
अरे मुर्दा कहेंगे आप, ये कहने बताइए। से मना करा मगर दफनाने से मना नहीं करा ना। दफनाते किसको है? वो दफनाने की तो कोई बात ही नहीं। आप नहीं है। क्या अल्लाह ताला ने क्या फरमाया जरा बताइए तो। दफनाते किसको? मुर्दों को दफनाते, जिंदों को दफनाते, पहले बताओ आप। कुरान में क्या फरमाया जरा वो तो बताइए, कुरान में तो बताइए क्या कहा अल्लाह ताला ने। देखो मेरी बात तो सुनो, मैं ये बताइए। सीधी बात क्या कह रहा हूँ कि दफनाया उसको जाता है या मुर्दा होता है, ठीक है, जिंदे को मैं नहीं कह रहा हूँ दफनाया जाता। मुर्दा, किनको मुर्दा नहीं कहा जाता है, वो कौन है, किसको ऐसा नहीं कहा चाहिए भाई, चलो उनकी शान है, उनकी एक मर्तबा है, उनको भाई उनके घर वालों को बुरा लगे करे, और अल्लाह ने मना करा है भाई लेकिन एक इनको बात मतलब। है, सुनिए सुनिए, अहले हदीस हजरात की मैंने बहुत सारे उलमा की तकरीर सुने हैं, ठीक है ना। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, या सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, या मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको कहते माशाल्लाह ये तो मर गया, अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि वो तो उनको कुरान में कहा गया उनको मुर्दा को मालूम मत कहो। अरे मौत ये तो तो सबको सही है। आनी, किसको मौत नहीं आनी पहले बताओ। तो अल्लाह ताला ने मौत कहा है किसको कि भाई आनी? उनको मुर्दा को मत करो। आप कुरान तो करा है नबी, आपको भी मौत आएगी, वो आपको नहीं भी है, कुरान जिनको शहीद सुनिए, जिनको शहीद अल्लाह ताला ने कहा है, और जिनको कहा है कि मुर्दा गुमान मत करो। आपको उलमा तो कहते हैं माशाल्लाह उमर के जजीर अंसारी ने कहते हैं कि जो जिसको दफनाते हैं वो मरा हुआ ही होता है। मतलब कुरान आपका को हम अकीदा माने नहीं तो क्या करें। है? आप जिंदा को दफनाते हो क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बता, जो जिसको दफना मुर्दा रहे हैं वो गुमान, मुर्दा ही है। मुर्दा गुमान भी ना करो, इसका मतलब क्या है जरा मुझे बताइए। और मतलब यही है कि भाई इसको, इनको इनकी शान के अंदर गुस्ताखी हो जाएगी, इस तरह ऐसे लफ्ज मत बोलो कि ये आपको भाई उलमा क्या। तो करते हैं, आपको तो उलमा तो करते हैं, ऐसे बदतरीन गुस्ताखी करते हैं। कोई हजरत गुस्सा इमाम नहीं है हुसैन कि रजी आप- अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से नहीं बोल मामला रहा इतने हूँ। अब आप ये भी अल्फाज नहीं कह से रहे भाई मुर्दों जी। को जो दफनाते हैं वो मुर्दा होता है जिंदा होता है, पहले बताओ। हम शहीद को मुर्दा कहेंगे ही नहीं, हाँ? हमें तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। तो हम भी तो यही अब कह आपकी रहे हैं बात कि माने मुर्दा या कहने कुरान का की बात मतलब माने, आप बताइए। सुनिए, मुर्दा हम आपकी बात, और हमें तो अल्लाह ताला ने मुर्दा फरमाया की कि जो बात नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह, सुन लीजिए, हेलो अपन हेलो मुंह से नहीं सुना। बोल रहे, मेरी बात तो सुनो आप, इसमें अपना अमल क्या है, अपन मुंह आप से मत सुनिए, बोलो भाई, अमल क्या है, अपन मुंह से मत बोलो मुर्दा, मुंह से बोलने की मगर बात ही नहीं है, आप अपना तो अमल कुरान में बता रहे तहरीफ हैं। कर रहे हैं, अपन कुरान में दफना आप तहरीफ कर रहे मेरी हैं। बात तो सुनो, अपन उसको हेलो दफना के कर रहे हैं तो अमल, अपना अमल बता रहा है कि मुर्दा है, हजरत, अपना हजरत अमल सुने बता सुने रहा है दफना रहे हैं। हजरत सुने, तो आप जो कह रहे थे मुंह से मत कहो, कुरान में तो कोई लफ्ज ही नहीं जो जिसका आप कुरान में आप तहरीफ कर रहे हैं। आप कह रहे मुंह से मतलब, गुमान का मतलब क्या समझते हैं? गुमान कोई मुंह से तो नहीं करता है, गुमान जहन से करता है, मुंह से नहीं करता है। भाई एक, अब आप इसमें एक बहुत बड़ी तफसीर है, उसे पढ़ता है आदमी, मगर हम तो आप आपसे अमल पढ़ना क्या चाहते है? हैं हजरत, मेरी हम तो आपसे मेरी बात सीखना तो चाहते सुनो, हैं, आप हमें भी पढ़ाइए कोई दिन की अरे बातें। मेरी बात तो सुनो, आपका अमल क्या कह रहा है? एक आदमी शहीद हो जाएगा तो आप क्या करोगे? उसको शहीद दफनाओगे या नहीं दफनाओगे? भाई हम तो उनको दफनाएंगे, लेकिन उनको मुर्दा तो नहीं कहेंगे, अरे अल्लाह, मगर मगर अल्लाह वो ताला ने मना फरमाया है। अमल क्या कर रहा है तुम्हारा? तुम जब उसको दफना रहे हो, वो जैसे हम्म, वो अमल अमल साबित हो रहा है ना, दफनाने का हाँ अमल मतलब, से मुर्दा साबित हो रहा है। हाँ तो आप, हाँ तो साबित हो रहा है, तो उनको क्या कहेंगे? अब तो मतलब मुंह से मर मत गए कहो, वो। मगर अमल से तो हो रहा है ना। हम्म, अरे भाई, मुंह से नहीं कह रहा आदमी, अमल तो देखो, अमल से तो एक हो रहा बात, एक बात है ना। सुन आप ये लीजिए, एक बात मुर्दा सुन है, लीजिए। दफनाओ। दफनाना कोई वो नहीं। आप देखिए बहुत सारे ऐसे शहीद हुए हैं जो बम के धमाके से खत्म हो गए, उनकी लाशें तक पता नहीं चला, तो क्या आप उनको शहीद नहीं कहेंगे अमल की बुनियाद पर? ये बताइए आप। भाई वो भी अभी उनको भी दफनाना ही है। बार बार आप अमल अमल क्या करें, अमल क्या करें। नए नए अमल, कितने शहीद हैं जिनके तो लाशें तक नहीं मिली, तो आप उनको क्या शहीद नहीं कहेंगे आप? ये अच्छा बताइए। आपको ये ना, मेरी बात सुनो, आपको बात आंकले के करनी मुताबिक बात ना करें, आंकले के मुताबिक ना बात, है। कुरान और हदीस से बात किया जाता है। ये आप तो पहली सबूत के बात हो साथ गई। बात दूसरी करना बात चाहते सुनिए, हैं आप सुनिए दूसरी बात सुन लीजिए। एक तो आपकी ये बात हो गई, दूसरी बात ये कि आपने कहा किसी को काफिर क्या है, इसका इसके ताल्लुक से क्या नाम है कि हमको अल्लाह ताला इसका फैसला करेगा, है ना। वो ना, दिलों का राज तो अल्लाह जान रहा है, आप और हम नहीं जान रहे, कोई भी नहीं तो जान रहा। तो अल्लाह ताला, अभी आपने कुरान नहीं पढ़ा? क्या? कुरान आपने नहीं पढ़ा? कुरान में मौजूद है कि ये क्या नाम है, ये अल्लाह की कसमें खाकर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हालांकि यकीनन कुफ्र का कलमा उनकी जुबान से निकल चुका है और ये इस्लाम के बाद काफिर हो गए। जो शख्स भी कुफ्र का कलमा कहता है, अरे वो कुफर का साबित तो है ना, तो कुफ्र खुद का ही कलमा कर कहता है, वो रहे तो काफिर हो जाता है। अभी आप कह रहे हैं कि इसका मेरी बात फैसला अल्लाह सुनो, ताला करेगा, अल्लाह ताला ने तो बयान एक कर आदमी दिया। मुंह से नहीं बोल रहा, मगर अमल से तो वही, अमल तो वही कर रहा ना जो एक मुर्दे के साथ किया आप जाता है, जैसे अमल कि दफनाना आप, करना। आप जैसे कि अहले हदीस हजरात है,
आप सुन्नी हनफी बरेलियों क्या कहते हैं कि ये मुशरिक है, ये कह दिया उन्होंने कुफ्र का कलमा। सुनो, ये कुछ वो भी ना, मानते हो क्या? मेरी बात तो सुनो। कोई भी चीज जी हो सबूत होनी चाहिए। अगर आपको बात करनी है तो बाहर से पे बात कर लो मेरे से। आप लिखित में दो मेरे को कोई भी चीज, मैं आपको लिखित में आप दूंगा इंशाल्लाह। जैसे अब मैं इतना जहन नहीं है कि वहां तो कोई जवाब दे सकूं, तो आप मेरे को लिख के दो, मैं आपको लिखित में जवाब दूंगा और आप मुझे लिखित में बात करो। आप लिखित में नहीं, आप किसी से लिखवा के लेकर आएंगे। अरे मैं तो आपको जवाब दूंगा ना। मैं तो किसी से किसी को लिखवा के जवाब लाएंगे, दूंगा। आप उनके मुकल्लिद हैं, ये बताइए। आप तो मुस्तहिद मुतलक है ना, अरे आप किसी भैया से लिखवा, वो सही लिखते हैं गलत लिखते हैं, उससे क्या मैं तो लेना देना है? आपको आप पूरा बताइए ना जवाब मुझे। दूंगा माकूल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह माकूल मैं जवाब आपको आप जवाब दीजिए ना। मैं हजरत, हम आपसे सीखना चाहते हैं ना, हम किसी के मुकल्लिद थोड़ी बनेंगे, हम आपसे सीखेंगे हम हजरत। किसी को मौका नहीं आ रहा, मगर ऐसा है, मेरी बात तो सुनो। एक तो होता है हाफिज, उसको पूरा कुरान मुंह जबान नहीं याद होता है, और एक ठीक है, देख के पढ़ता है। तो हम तो देख देख के बताएंगे ना, देख कुरान को देख, खोलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, खोलते जाएंगे, बताते जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे तो, याद तो आप सुने 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 हजरत, एक मिनट सुना भी करिए। अब आप बताए, हमको सिखाएंगे तो हम सीखेंगे ना। तो हम ये कह रहे हैं कि हम, मैं तो तालिब इल्म हूं सीधा साधा सा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जैसे नहीं, मतलब आपको सबूत सुने, तो होगा ना। सुना करे, आप अपने बारे में बता रहा हूँ, सुने तो सही। अब जैसे कि क्या नाम है कि आप माशाल्लाह कुरान तो आपके पास होगा ही होगा, है ना? हम्म, घर पे रखे होंगे ना, मतलब मोबाइल में है कि मतलब नहीं ऐसे है घर पे, हार्ड कॉपी है? कुरान घर पे घर, है। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह आप वो कुरान पढ़ लेते हैं आप? इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, जहाँ पे भी आता है, जैसे मगर मतलब सूरह आजकल फातिहा, तर्जुमे, मेरी बात तो सुनो, तर्जुमे अर्जुमे सब, तर्जुमे भी कुरान हिंदी में भी है, उर्दू में भी अच्छा, तर्जुमे है। तर्जुमे से अपन पढ़ते हैं ना। जी जी, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, तर्जुमे से पढ़ना चाहिए, तभी तो इंसान को समझ में आएगा। आप एक बार व्हाट्सएप खोलो ना, देखा, फिर आप लिख के तो लगा दो, आप कुरान की आयत लिख के, तो फिर मैं इंशाल्लाह कुरान से जवाब दूंगा, हदीस से जवाब दूंगा। बड़ी अच्छी बात है। अरे सूरह फातिहा हजरत कैसे पढ़ के बताइए जरा तो। हम्म, सूरह फातिहा, जो सूरह फातिहा पढ़ के बताइए जरा हजरत तो। अब सूरह फातिहा पढ़ना आता है, क्यों नहीं आता? हर एक को आता है। सूरह फातिहा बिना तो नमाज ही नहीं होती। जी जी, पढ़ के सुनाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तो शुरू में ही गलत पढ़ दिए। अरे वो आप आपकी तसव्वुफ जैसे भी है कि ना, मतलब आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा कुरान पढ़ा, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। कहाँ रहते हैं आप? गुलाबपुरा राजस्थान, भीलवाड़ा जिला। अच्छा, तो ये आपका नाम किस नंबर से सेव कर, किस नाम से सेव कर लूँ? अब्दुल करीम, अब्दुल करीम। अब्दुल करीम भाई, चलो ठीक है। आप आपने कोई भी कुरान बहुत लिखित में अच्छा बात पढ़ा करो। आपने। जी, आप जैसे लिखित में आप कुरान की आयत भेजो, हदीस भेजो, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। तो अब्दुल करीम भाई, तो अभी आप कितने बजे तक जागेंगे? है, आप कितने बजे तक जागेंगे? मैं तो अब सोने वाला हूँ, थोड़ी देर में मगर जवाब देता रहता हूँ मैं। अभी नहीं था, आप कल तक रोज चलता रहेगा, 2-4 दिन तक। हाँ चलेगा ना इंशाल्लाह। मैं दिन सोचता हूँ कि मिलता अभी तो रहेगा। देखिए पौने 11 बजे है, सुनिए, अभी तो हाँ पौने 11 बज रहा है। मैं सोचता हूँ कल आपको 10 बजे फोन करूँ, है ना? हाँ क्या हाँ। ख्याल है? कौन? हाँ, अरे आप व्हाट्सएप में लिख दो ना, आपके भाई इसका आपने बस बात यही ठीक है। पापा लिख आप दो। देखिए, कोई मसला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अब्दुल करीम भाई, मैं आपको व्हाट्सएप पर लिख के दूंगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं लिख के दूंगा, लेकिन कोई बातें जबानी भी कर ली जाए तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ हाँ, बस अगर कोई बातें, मेरा मुहावरा क्या है कि ये पूरा व्हाट्सएप पे लिखने में ज्यादा मुहावरा, लोगों को बात करता नहीं हूँ नहीं ना। ठीक है, उसमें कोई हमारी मनाही नहीं, कि हम मना नहीं कर रहे कि आप, हम आपको व्हाट्सएप पे लिख के नहीं देंगे, हम लिख के देंगे, जरूर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई अगर मैं बातें कुरान जबानी भी हदीस से कर, हटता हूँ, मेरी बात तो सुनो, अगर मैं कुरान हदीस से हटता हूँ तो आपका कर्तव्य है मुझे टोकने का, आप गलत बोल रहे हो, ये आपने गलत। ठीक है, वही बात ना। अगर हम बात करेंगे तो बात करने के दौरान पता चल जाएगा ना। अब आप तहरीर तौर से कब टिक का जवाब देंगे तो इसमें पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई बातें वो ऊपर ऊपर हल्के से कॉल पर बात कर लेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं है। तहरीर भी हम आपको देंगे इंशाल्लाह, जो भी होगा। हाँ, आपके कोई बड़े मौलाना साहब है उधर आपके जो बात करें? है? आपके इमाम साहब हो या फिर आपके मुफ्ती साहब हो आपके इलाके में? अब ये है तो है इमाम साहब, मगर क्या मालूम होता है, हर आदमी हर एक में माहिर नहीं होता, हर एक में कोई मुनाजिर वाले अलग ही होते हैं, बात करने वाला अलग ही होता है। वैसे तो मौलाना वो है, मैं नहीं ऐसी बोले, बात मतलब नहीं पूछा कोई है, मतलब कोई है कि नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ। है ना, हमारे मौलाना साहब भी है और बच्चा क्या भी है, नाम? उनके बच्चे ही हैं, इतने आलिम नहीं लग रहे भारी को मुझे। अच्छा फिर अच्छा, भी क्या बात नाम है उनका? करेंगे। अरे उनका नाम मगर क्या है? आप तो लिखित में दो ना, आप लिखित में दो पक्का सबूत, ना मैं बदलू ना आप बदलो, कि आपने लिख हाँ के हाँ, दिया ठीक तो है आप ठीक है। गलत।
बदलूंगा इंशाल्लाह। मैं लिख के दूं, मतलब मैं पूछ रहा था कि मौलाना साहब उस लोग को पूछने की कोई बुराई तो नहीं है। आप लिख के दोगे तो अपन दोनों बदलेंगे नहीं। नहीं ठीक है, वो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके मौलाना साहब अगर हैं तो उनमें मैं आपसे अगर मालूमात कर रहा हूँ उसमें कोई बुराई तो नहीं ना। हाँ मगर ये इसलिए इसने जैसे अपन बातें करी ना, अब हमें वापस क्या वापस दोहरा हुआ आता नहीं है, और लिखा हुआ में क्या वापस अपन उसको रिपीट कर देते हैं कि देखो आपने बोला था पहले। अच्छा एक बात और पूछूंगा, अभी आप सोने भी जा रहे हैं, कोई मसला नहीं, मैं भी सोने जा रहा था, मैं आपसे एक बात लास्ट में पूछता हूँ। नाम ये अहले हदीस, मेरा नाम सादिक अली अंसारी है, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। साजिद अली? जी सादिक अली अंसारी। सादिक? हाँ सादिक। सादिक अली अंसारी। हाँ जी जी। चलो हम आपको नोट, ठीक है ना। एक बात आप पूछ लो लास्ट में जाते जाते 2 मिनट। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये अहले हदीस कब बने, इससे पहले क्या थे? अल्लाह के बंदे, अहले हदीस तो मेरी बात तो सुनो, ये एक नाम है, जैसे बरेली कब बने? अरे हजरत मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं फिरके के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ कि आप फिरके मतलब कब बने, वो नहीं पूछ रहा, आप कब बने अहले हदीस वो बताए ना। जब से मैंने मेरे वालिद साहब को अहले हदीस ही देखा। क्या कह रहे हैं? मैंने सबसे पैदाइश से मैं अहले हदीस हूँ। अच्छा, और आपके वालिद साहब? वालिद साहब भी अहले हदीस थे हमारे। मैं इस बात को एकदम मानने के लिए नहीं तैयार हूँ, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। क्या ये कि आप पैदाइश से अहले हदीस है और आपके वालिद साहब भी अहले हदीस है? तो आपका क्या मतलब है? अहले हदीस अभी बने ही हूँ। जी अहले हदीस का पता तो नए अभी बने हुए हैं ना। कितने का एक भी सबूत दे दो देगा। जी मेरे पास बहुत सारी किताबें मौजूद है। अरे बरेली फिरकत अभी बना, आला हजरत का इंतकाल 104 आला हजरत अभी 105 पहली बात तो सुनिए, अगर कोई बात की जाती है ना तो एक तो किताब के मुताबिक बात की जाती है, एक अक्ल के मुताबिक बात की जाती है, ठीक है ना। एक तो भाई आप तो किताब से बात करने से काफिर है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अक्ल के मुताबिक आप बात करेंगे, आप कहेंगे अहले हदीस पहले थे, ठीक है ना, सब सारे अहले हदीस थे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये इंडिया में या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बरेलवी ही है, सुन्नी है, जिनको कहा जाता है वो सुन्नी ही है, बरेलवी है। तो ये बरेलवी सुन्नी सब इकट्ठा अहले हदीस सब बरेलवी बन कैसे गए इकट्ठा, वो कब बने? बात तो सुनो, सुन्नी तो सभी है, बरेली भी ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए सुन्नी है, देवबंदी भी सुन्नी है, जमात इस्लाम भी सुन्नी है, वो फिर अपना अलग अलग वो टाइटल है भाई, कोई बरेली है कोई वो है क्या, मगर सबका मकसद एक ही है। थोड़ा बता देता हूँ मैं, सुनिए आप बुरा ना माने, एक बात मैं बता देता हूँ, आपके इल्म में नहीं है, मैं बता देता हूँ। कोई भी अहले हदीस अगर आपके इलाके में हो, आपके इलाके में जो आलिम है, मुफ्ती हैं, ठीक है ना, आपके इलाके में है, उनसे मुझे बात कराइए। आप अहले हदीस कुरान और हदीस पर चलने का दावा तो छोड़ दीजिए, मैं यकीनन मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ना ही मैं बुक की बुनियाद पर कह रहा हूँ, मैं सिर्फ दलाइल की बुनियाद। सुन लीजिए एक मिनट सुना करें, सुनेंगे तभी तो जवाब देंगे ना आप। मैं दलाइल के बिना पर कह रहा हूँ, हकीकत वाकई मैं कह रहा हूँ कि अहले हदीस जो जमात है ना, उनका बिल्कुल इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इस पर इनाम भी देने के लिए तैयार हूँ और इस पर मैं जो बात भी करने के लिए तैयार हूँ, और जब चाहे बात करने के लिए आपके उलमा आलिम मुफ्ती कोई भी हो उनको ले आए और मैं एक एक बात की दलील पेश करूंगा, और ना पेश करा ना तो मैं आपके हाथ पर तौबा कर लूंगा। चलो ये मेरी बात तो सुनो, अहले हदीस लोग, मेरी बात तो सुनो, अहले हदीस लोग नमाज पढ़ते हैं। नहीं नमाज तो कोई मसला नहीं है। अब एक भी गलती बताओ कि फलानी गलती करते, पहले बताओ। अब सुनिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तब ना बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मुस्तद इमाम अहमद बिन हंबल, बुखारी, मुस्लिम, सुनन इब्न माजा, निसाई, मुसन्नफ इब्न शैबा, तमाम किताबों में हदीस मौजूद है। जो खवारिज है, खवारिज की सबसे बड़ी निशानी है कि वो नमाज इतनी ज़्यादा पढ़ेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि वो इतनी नमाजें पढ़ेंगे खवारिज कि तुम्हारी नमाज उनकी नमाज के आगे कम नजर आएंगी। तुम्हारी नमाज, सहाबा इकराम की नमाज उनके आगे, खवारिज की नमाज के आगे कम नजर आएंगी। तो नमाज तो मसला नहीं है, नमाज तो सब पढ़ते हैं। आप भी हो, आप भी ज्यादा नमाज पढ़ दो, तो ईसा में 17 पढ़ लेते हो, हम तो वही पढ़ते हैं लिमिट, हो सकता आप भी हो, आप नमाज तो कादियानी भी पढ़ते हैं, शिया भी पढ़ते हैं, वो थोड़ी कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूँ ना। क्या करें, साबित भी नहीं कर सकते इस चीज को 17 है ईसा में, आप साबित भी नहीं कर सकते ईसा में आप में 17 साबित करके बताओ, नमाज 17 हदीस से साबित बताओ, हो सकता आप ही ख्वारिज हो।
क्या कह रहे हैं, मतलब मैं आपकी बात समझ में नहीं, ना बोलिए। ज्यादा नमाजें पढ़ता हूँ देख हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे ऐसे होंगे, पर उनके दिलों का हाल अल्लाह जानता है, कहने मतलब कौन कैसा क्या है। अल्लाह ताला जानता है, वो तो बेशक जानता है, लेकिन अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीसें बयान, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीसें बयान फरमाई है, उस अरे हदीस के बिना पर नाम फरमा रहे हैं ना, बयान कर रहे हैं ना। अल्लाह करेगा, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। हाँ, तो हम तो उनके कुफिया कलमा के दबा। ज्यादा नमाज पढ़ेंगे, ज्यादा नमाज तो बरेली पढ़ते हैं और 17 पढ़ते हैं ईसा की, और उनके पास सबूत भी नहीं है उनके पास, फिर भी पढ़ते चलिए हैं। माना तो कि बरेलवी ज्यादा नमाज पढ़ने वाले, तो फिर आप लोग कैसे कहते हैं कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते? आप लोग कहेंगे कि नमाज पढ़ते हो लोग। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि बरेलवी 17 पढ़ते हैं, जबकि इसका मतलब खारिज हुए आप तो, और आपके पास सबूत भी नहीं है। जाओ मैं चैलेंज मारता हूँ, आप कुरान हदीस साबित करके बता दो कि ईसा और की अगर नमाज। मैंने साबित कर दिया तो? हाँ साबित करके बता दो, मान लूँ अगर आपको। मैं दलाल के साथ साबित कर दिया तो फिर आप रुजू करेंगे अहले हदीस से? आप दलाल साबित कर लो, मान लूंगा कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। आप अगर मैं 17 सल्लल्लाहु अगर मैं साबित कर दिया तो आप मानेंगे पक्का? आप साबित कर दो। ठीक है, चलिए मैं आपको पूरे दलाल का लिस्ट दे दूंगा आपको, ठीक है? आप अपने आलिम साहब से बात कराइएगा, ठीक है, उनको लेकर के साथ में, ठीक है? बोल आप कितनी पढ़ते हैं? आपको नाम क्या बताया आपने? सादिक। हाँ, आप ऐशा की नमाज कितने रकात पढ़ते हैं? ईशा की नमाज तो देखो, वैसे अपन जाते हैं नमाज मस्जिद में तो 4 ही पढ़ लेते हैं, पहले सुन्नत मौके वो ठीक है। गैर मौके था क्या, और 100 मिलेगा नहीं पढ़ोगे कोई नहीं, मगर पढ़ लेने चाहिए, पढ़ते हैं। और 4 पढ़ते हैं फर्ज, फिर 2 सुन्नत, 3 नफिल पढ़े, 3 वितर पढ़ लेते हैं, एक भी पढ़ लेते हैं हम तो। अच्छा, हम झूठ नहीं तो ये बोलते, बताइए। हम जो बात कहेंगे साफ साफ कहते हैं, ठीक है, ठीक है, आप मिलावट सुनिए नहीं तो। करते किसी चीज के अंदर। हम जो कहते हैं वो हमने कहा ना, ये सही बात खत्म, ये होगी आप नमाज। सुनिए, आप सुनेंगे। हम्म। मैं कह रहा हूँ कि ये जो नमाजें पढ़ते हैं, ये सुन्नत है, फर्ज है, ये कहाँ से आपने बताया? कुरान और हदीस में ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि ये फर्ज है, ये सुन्नत क्या है, ये वाजिब है? जो कुरान हदीस में लिखा हुआ है? लगातार किया अपन, वो हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार जो पढ़ते, जिसको अभी छोड़े नहीं उसको अपन अपन वो मौकेदा कह देते हैं, कभी कभी जिन चीजों को छोड़ा नहीं उसको मौकेदा कह देते हैं, और जिनको कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा उनको गैर मौकेदा कह देते हैं। ये और क्या लफ्ज का फर्क है, अपनी भाषा का फर्क है, भाषा। बात बिल्कुल सही है, वो बात मैं मानता हूँ, वो बात नहीं है। जैसे एक रफ़ाइदैन आप नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, रफ़ाइदैन करते हैं, ठीक है, उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रफ़ाइदैन करने का हुक्म दिया आपको? हाँ करो, अल्लाह के बंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ादैन करते थे। करते थे। आपको कभी गुम दिया क्या रफ़ादैन मत करना, आप बता सकते हो क्या? हम तो दिखा देंगे, लेकिन आप कभी आपको हुक्म दिया नहीं। आप मान लेंगे, या मान लेंगे, आपकी बात मान लेंगे, आपकी बात मान लेंगे, जाओ क्या आप ये बता दोगे ना जी, मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। या हम आप आपकी बात मान लेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बात करूंगा, मैं इसी पे बात करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि रफ़ादैन पर जो आप बात करेंगे, तो हाँ। ये रफ़ादैन करना जो है, ये क्या है आपके नजदीक? क्या है आपके नजदीक करना जायज है? जायज मतलब कैसा जायज है, क्या है? क्या हदीस में साबित है? हदीस हदीस साबित है। जायज है, अगर हम रफ़ादैन नहीं करते तो? है? और हम नहीं रफ़ादैन नहीं करते तो? अगर आप रफ़ादैन नहीं करते है ना, ठीक है। मेरी बात सुनो, और आप दलील देते हो कुरान हदीस की, तो चलो भी आप, चलो आप ठीक है, आप करो, आपके आपका हेलो, देखिए, अगर जो मैं पूछ रहा हूँ बताइए। मैं कह रहा हूँ जो रफ़ादैन नहीं करते हैं तो उनकी नमाज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो मैं पूछ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह करेगा, हम तो हमारे पास पक्का सबूत है, हम तो उसी पे चल रहे हैं, कहना मतलब अब वो कर रहे हैं उनके। रफ़ादैन पे आप बात भी करेंगे और आप फिर रफ़ादैन के ताल्लुक से आपको कुछ मालूम भी नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ जो रफ़ादैन नहीं करता उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी, तो आप बात किस बिना पर करेंगे, वो तो बताइए। करता हूँ कि नमाज होगी या नहीं होगी? क्या? आप मुझे बताए, जो रफ़ादैन करता हूँ कि नमाज होगी या नहीं होगी? रफ़ादैन देखो, पहली बात तो मनसूख है। रफ़ादैन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उनको मनसूख कर दिया है। वो हदीस से हम हदीस से दिखाएंगे ना, हम हदीस से दिखाएंगे। देखिए आपने जो बोल क्या हो गया आप? देखिए, एक बात होती है ना कि दोनों तरफ से अपना मौक़िफ़ बताया जाता है। मैं कह रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुने ना, सुना करें। हम नबी पाक रफ़ादैन करते रसूल हैं, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रफ़ादैन रफ़ादैन, करते थे, गलत है ना वो? क्या कह रहे हैं? बड़े पीर साहब भी रफ़ादैन करते थे, करते थे। हम जाफिर रहमतुल्लाह भी रफ़ादैन करते थे। तो बड़े इमाम साहब आपके लिए ऊँचे थे। सर तो बोलता भरा कि हर एक नहीं होंगे, नमाज नहीं होती। पहली बात तो सुने, बड़े पीर, आप किधर किधर जा रहे हैं? बड़े सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला
वो रफायदैन करते तो हम्बली थे, तो आप क्यों नहीं बन जाते हम्बली? हम्बली कुछ बनना जरूरी है क्या? तो वही तो कह रहे आप, फिर उनकी दलील क्यों पकड़ रहे आप? अरे उनका मैं नाम बात क्यों? कर रहा था, मगर आप उनको हक बरक क्यों कह रहे हो? ये इधर इसलिए देखिए, जो चार इमाम मुस्तहिद हैं, ठीक है, जिनमें 2 रफायदैन करते हैं, जिनको जो हदीसें मिले उन पर अमल करते हैं। आप कहते हैं कि रफायदैन करते हैं, रफायदैन करना चाहिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि रफायदैन के बिना आपकी नमाज, है अगर आप हम रफायदैन नहीं करते तो हमारी नमाज होगी कि नहीं होगी, वो बताइए, सिर्फ इतना बताइए बस। देखो ऐसा है, मेरी बात तो सुनो। जी बताइए। तो अगर पक्का सबूत है तो हो जाएगी क्या? क्या? पक्का सबूत है तो हो जाएगी। अगर आप वसल्लम से आपको ये पक्का सबूत मैं देखिए, मैं पूछ रहा हूँ, तो मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप कुछ दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मैं रफायदैन नहीं करता तो मेरी नमाज होगी कि नहीं होगी? देखो, दोनों तरफ के दलाइल हैं, दोनों तरफ थोड़े है दलाइल है, जो वो भी करते हैं, जो कोई रफादन नहीं भी कर रहा है भाई, इनमें भी जो जैसे कर रहा है वो भी करो भाई, वो अलग चीज है, अलग बात जो है। मैं मतलब जो मैं जैसे आप लोग कहते हो कुरान नबी का हवाला दे देते हो आप, है ना, कोई भी चीज का अगर नबी का हवाला दे देते हो तो फिर कोई और भाई इसका फैसला अल्लाह करेगा, वो भी तुम भी वो बात नहीं कह रहा हूँ हजरत, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए ना। मैं कह रहा हूँ कि जो रफायदैन नहीं करते, जैसे मैं रफायदैन नहीं करता हूँ, ठीक है ना, तो मेरी नमाज होगी कि नहीं होगी, वो मैं पूछा सीधा। ये कहना मतलब आप क्या कह रहे हो? आप अगर ये बात कहते हो कि ये ठीक है। हमारे इमाम साहब से साबित है क्या देन नहीं करना, ये हमारे तो नमाज नहीं होगी। पर अगर तो आप ये कहते हो कि नबी से साबित है तो नमाज हो जाएगी। मतलब मैं समझा नहीं, फिर से एक बार कहिए तो ना। इमाम साहब से अरे साबित है। भाई आप कहोगे भी हमारे फलाना फलाना इमाम ने कहा अगर रफेदेम नहीं करना तो ठीक आपकी है। नमाज नहीं होगी। और अगर आप कहोगे कि आप वसल्लम की हदीस है हमारे पास, सही हदीस है हाँ हमारे पास, तो नमाज हो जाएगी, हाँ, नमाज तो हो हम जाएगी हदीस होगी तो। हाँ, तो हमारी हो जाती है ना। तो जो तो अगर जब हमारी नमाज हो जाती है, आपका बकौल आपकी नमाज हो जाती है, तो फिर रफायदैन पे आप बहस कैसे करेंगे? आप बताइए। है आप कैसे बहस वो करेंगे? तो आप आप लोग तो कह रहे हैं आप तो हमारे पास तो हदीसें मौजूद है। आप लोग करते हो अगर फजर से नमाज नहीं होती है। हम नहीं करते। आपके उलमा बार बार चढ़ते हैं कि रफायदैन नहीं करते, रफायदैन नहीं करते, रफायदैन पे मुनाजरा करो। हम तो कहते हैं कर लो मुनाजरा रफायदैन पे। रफायदैन के नाम का सीने पर हाथ बांधने के ताल्लुक से आप मुनाजरा कर लो। वो बात छोड़ो, आप तो कोई एक मौजू को ऊपर ऐसी बात रखो तो फिर से मालूम चल जाएगी कि वो भी आप एक मौजू चुन लो चले, क्या। हाँ, मैं मौजूद चुन लेता हूँ। आप अपने आलिम साहब से कल बात कराएंगे? आलिम साहब से तो बात करा देंगे मैं, मगर आप एक मौजू चुन के व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, मैं मौजूद चुन के मैं व्हाट्सएप पे भाई मैसेज आपको डाल देता हूँ। अब्दुल करीम भाई। ठीक है ना, शादी कर ली है ना, हाँ हाँ हाँ। शादी कर ली ना। जी जी। चलो इंशाल्लाह आप कोई मौजू सुन के मैं व्हाट्सअप भेज रहा हूँ आपको, उसी पे आप सवाल जवाब कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, तो आप बात करेंगे या फिर आपके आलिम साहब बात करेंगे? ये बताते कम से कम। आलिम साहब तो मेरे को तो ऐसा अभी वो आए हैं मकतब से निकल के, नए नए छोरे लग रहे हैं, साल 2 साल ही हुए हैं अभी आए हुए, तो उतना बड़ा तो इतना उनको वो होता नहीं इतना, अभी मकतब से आए ना। आखिर वो बड़ा आलिम अलग ही होते हैं जो वो मजे में होते हैं क्या, हम्म। वो अलग बातें हैं। अभी बच्चे से बच्चे ही अभी तो आए हैं जो, तो अभी बात कर रहे हैं इंशाल्लाह, हम्म। फिर हाँ तो बात ठीक है, ऐसा लगे तो आप बात करा दीजिएगा। हाँ बात आप मेरी बात तो सुनो, आपको कोई मौजूद छेड़ना है ना, कोई भी मौजूद, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर आप छेड़ देना, ये दलील है हमारे पास, बात खत्म। फिर हम आपको दलील देंगे इंशाल्लाह। आप एक गलती हमारी बताओ, उसके ऊपर छेड़ो, है ना, हम ये हमको आप पे विश्वास नहीं है, बस एक गलती आप बताओ ना, फिर दूसरी गलती मैं बताऊंगा। ठीक है, बता देते हैं, बता देंगे। कल कब है बात ना, करेंगे? कल? चीजों में ये गलती है ना, ये हमको अच्छी नहीं लगती, फिर मैं उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। फिर मैं आपसे पूछूंगा दूसरी बात कि सबसे आप बड़ी गलती तो ये है, सबसे बड़ी एक गलती मैं बता देता हूँ आपको। हाँ? शुरू स्टार्टिंग में सबसे बड़ी गलती ये है अहले हदीस उलमा की, कि हदीस शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह तआला अलैह के अल-मुसन्नफ़ में और भी दीगर किताबों में हदीस शरीफ मौजूद है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा किताब में मौजूद है और भी दीगर किताबों में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जो है इमामा बांधते थे कि नहीं बांधते थे? जो अमामा बांधते थे ना सर पे। अहले हदीस क्यों नहीं बांधते, वो बताइए। अरे मेरी बात तो सुनो, वो तो जी जाकर बताइए। तो बांधते ही हैं, अब अरब के अंदर बांधते भी हैं, तेरा मतलब अरब ऐसा अरब के अंदर किसी को मैंने नहीं देखा, मना तो है एक ही को भी नहीं। नहीं। बांधने वाले बांधते हैं, बांधो ना, कोई मना थोड़ी होगा इसके ऊपर। हम ना हम तो अब देखिए, आप बांध लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि अहले हदीस बांध लीजिए। आप ये अहले बता अभी आप दीजिए नहीं बांधने चाहिए। जी
किसी ने लिखा है कि नहीं बांधनी चाहिए? किसी ने लिखा नहीं बनना चाहिए। अभी आपने शुरू में एक बात बताई थी कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंटिन्यू किया, जो हमेशा किया, उसको सुन्नत मुअक्कदा कहेंगे, ठीक है। मान लो, उसमें कोई मना थोड़ी है, मान लो ना। तो रसूल अभी हम आपकी गलती बता रहे, तो आप उस पर अड़ रहे, आप कह रहे हम तो बांधते, आप कौलमा क्यों नहीं बांधते, आप लोग क्यों नहीं बांधते, वो बताइए। सब बांधो बांधो ना, हमको मना करे, हम भी बांधते हैं, कभी शादी ब्याह होती तो ना ना, हमारा भी कोई बोला नहीं बांधता है। वो साहब बांध देते, साहब बांध के निकाह करा के निकाह है। 10 अहले हदीस उलमा के नाम बता दीजिए, वो इमाम बांधते सर पर, सिर्फ 10 बता दे अरे अल्लाह के पूरे बंदे, जमात के अंदर। वो नहीं है कि आप साहब बांधना, कोई ऐसी कोई ताकीद नहीं आई है ना कि साहब बांधो। तो एक तो ताकीद होती है कि भाई टकने से ऊंचा पजामा पहनना, ये ताकीदी हुक्म है। क्या कोई अमल करे तो ठीक है, कोई नहीं सर करे पे तो इमाम बांधने का, सर पे इमाम बांधने के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया है नहीं। अरे भाई आप बांधो, सब बांधो, कई जने बांधते भी है, नहीं बांधते हैं, बांधते ऐसा कोई मसला नहीं है मैं ये। कह रहा हूँ कि वल्लाह बिल्लाह 10 अहले हदीसों का आप नाम नहीं बताते जो सर पे अमामा बांधते हैं, दुपट्टा रखते सर पे अमामा नहीं बांधते। अरे अल्लाह के बंदे बांधने वाले बांधते होंगे, और कोई मनाही थोड़ी है इसके अंदर, कोई किसी को मुझे अंदर दिखाते, आप खुद नहीं बांधते होगे अरे किसी को टोका है क्या तुम मान करो, पहले ये बताओ कि क्या? कोई बांधता है तो उसको टोका क्या, तुम क्यों बांध रहा है? हमारा बांधा अच्छा अरे लगा अभी आपने कहा कि हमारे अंदर आगे से कोई कमी है तो बताइए, तो हम सबके अंदर की कमी बताए तो आप तो हमारा बांध देना, हम बांध लेंगे, लो हम बांध लेंगे, हमें खुद बांध लेंगे। बात, हाँ बात करिए कि आप बांध करिए। फोटो खींच के बता देंगे ये बांध लिया मामा, क्या हुआ, इसमें कोई हाँ, मसला नहीं है। मामा साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामा बांधना सुन्नत मुबारक है, तो आप बांधा करें, अपने उलमा को समझाया करिए। तो मना कर रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं? अरे हम तो कब आप मना बांधते कर नहीं, रहे हैं? आपको उलमा तो कुरान हदीस पे चलते भी नहीं, वो अरे हदीस में मौजूद है, वो बांधने के ताल्लुक से। ये कोई तुम्हारा सवाल जवाब नहीं हुआ तुम्हारा, ये तुम्हारी हार होगी, हमारा सवाल जवाब नहीं, हमारे हाथ कहाँ हो गए। होगी। मैं तुम्हारी हम कह रहा तुम मान लो, मैं हम मानने को तैयार है, बांध दो आप। नहीं कहते, सुने आप तो आलिम नहीं, पहली बात आपके उलमा, सुने आपके आलिम साहब जो है, ठीक है, आपको उलमा है जो नमाज पढ़ाते हैं, इमाम के मस्जिद के इमाम सब है, और बड़े बड़े आपके मुफ्तियान इकराम जो है, और अरब के उलमा लोग हैं, उनको तो मैंने किसी को इमाम बांधते हुए नहीं देखा, जो कि हदीस में बिल्कुल वाज़ेह है। बांधने वाले बांधते भी हैं, और जहाँ मैंने किसी को नहीं देखा, वल्लाह बिल्लाह, मैं सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाला, मैं किसी को नहीं देखा। नहीं है। आप देखो, आप आपकी चल रही थी तो आप ऐसी बातें मत करो, हम कह रहे हैं मैं तकरीबन 20 साल की वीडियो में दिखा दूंगा, जदीद अंसारी के कभी उसने मंगलसर पे नहीं बांधा, नहीं बांधा, मेरा जापानी ने बांधा, किसी ने नहीं बांधा। अरे मेरी बात तो सुनो, आपके आलिम तो सफेद कपड़े बहुत कम पहनते हैं, और लाल कपड़े, पुराना कपड़े, जबकि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद कपड़े को पसंद ज्यादा फरमाया है। हाँ तो पहनते हैं ना, उसमें क्या लाल बांधते तो मैं देखो सारा, और आमीन सब मेरे करीबन सब सफेद पहनते हैं, और सब सफेद सबसे अफजल है पहनना। तो इसका मतलब ये थोड़ी लाल पहन रहे हैं, पीला पहन रहे हैं, कैसे कैसे पहन रहे हैं, अरे वो भी पहन सकते हो। ये तो बात नहीं है ना, मतलब अब आपकी हार हो चुकी है यहाँ पे, ये बात नहीं, आपको ऐसा छोड़ो। अब लिबास की बात करेंगे, बहुत आगे तक बात चलेगी। बात यह है कि देखिए, सिर्फ सफेद ही नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद कपड़े को पसंद फरमाया है, तो दाढ़ी रंगने को भी पसंद फरमाया है, केसरी कलर की दाढ़ी रंगा करते, तो वो आपको और मत नहीं रखते हैं। अरे सफेद को बताया, पसंद तो करा है सबको, मगर अफजल सफेद है, अफजल सफेद है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी पे रंगा कर देते हैं, अपनी दाढ़ी मुबारक रंगनी चाहिए ना, जो नहीं रंगता वो रंगनी चाहिए, दाढ़ी रखनी चाहिए ना। हाँ तो आपके उलमा तो नहीं रखते हैं। मैंने रंग रखी है ना, लाल मेहंदी लगा रखी है, मैंने खुद ने लगा रखी है। अच्छा चलिए, फोटो भेजिएगा, मैं देखूंगा व्हाट्सएप पर। सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहूदियों की मुखालफत करो, वो यहूदी दाढ़ियों को नहीं रंगवाते हैं, तुम रंगवाओ। हाँ तो आप लोग तो नहीं रंगवाते हैं, रंगवाते हैं ना हम। मैंने किसी का नहीं देखा, मैंने तो किसी अहले तसल्लुल्लाह की नहीं देखा। नहीं कैसे नहीं है, हम तो रंगवाते हैं। एक का नाम बताइए आप, एक का नाम बताइए आप, किसका? किसी एक आलिम का बताइए, अहले हदीस आलिम का जिसमें दाढ़ी रंगी हो। रहमान है, और जर्जिस है, 2-4-5 बहुत से अच्छे नाम है, मुझे वही तो याद रहेगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास उनकी फोटो ओरिजिनल मौजूद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल फोटो भेजो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा फोटो जी मेरे पास फोटो में भेजता हूँ आपको, ठीक है ना। 11 बजे है तकरीबन,
आपसे कल इंशाल्लाह बात होगी, ठीक है। मेरा नाम अब्दुल करीम है, ठीक है ना। और अब्दुल आप करीम भाई, तो मेरा नाम सादिक अली अंसारी है, और आप ही बात करेंगे, कोई और बात करेंगे? मैं अकेले ही बात करूंगा, मैं तो सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करूंगा, आप व्हाट्सएप पे जवाब देते रहना। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। लिखित में ताकि ऐसा भी अपने पे क्या बोला सब भूल गए, ऐसा है? उसमें भूलने नहीं आवे व्हाट्सएप के अंदर मैंने क्या बोला था। तो आपको मैं वापस लूंगा और लेने पे तो आपने फलाना जवाब देता, आप पलटो मत, या आप मुझे कैसे सकते हो, आप मत पलटो, आपने बोल चुको ये बात, वापस व्हाट्सएप पे रिपीट हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है भैया। वैसे कुरान आपने बहुत अच्छा पढ़ा था माशाल्लाह। मुझे जवानी से मजा नहीं आवे, अरे 100 बकार एक लिखा, जब लिखेंगे ना तो फिर आप भी नहीं बदल सकते, मैं भी नहीं बदल सकता। ठीक है चले। हाँ शादी कर लीजिए सारी। ठीक है, आराम करिए, ठीक है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, अब मैं आपको भेज रहा हूँ एक व्हाट्सअप, ठीक है। ठीक है भेजिए।